Okay, the rest of the terms we're going to do quickly because now you've gotten the idea of the word, the root, the suffix, the prefix, right? I will be repeating that at the end as well. अब यहाँ पर है hemorrhage. Hemorrhage means excessive fluid loss, so excessive bleeding of like flow of blood. ठीक है. Then you have hepatomegaly. Hepato is for liver, megaly is for enlargement. So hepatomegaly, enlargement of the liver. Hypertension, hyper is excessive and tension is pressure. So excessive blood pressure, high blood pressure. Hypertension is low, below normal, and tension is blood pressure, right? So low blood pressure. Infection is harmful organisms invading the body. So in means into, infection means the process of infection. So infection. Inflammation is body's response to injury. It contains a lot of different symptoms like swelling and redness and temperature increasing. So usually presents with fever. तो इसको आइटिस भी मतलब आइटिस की तरह भी दिखाते हैं ना, गैस्ट्राइटिस. ठीक है. तो इन्फ्लेमेशन. Then you have ठीक है जी. Then you have interstitial. Interstitial means anything between the spaces of the tissues. So stish मतलब tissues, inter मतलब between, stitial मतलब tissue. So interstitial means between the spaces of the spaces between the tissues. ठीक है. फिर आता है इंट्रामस्कुलर. इंट्रा का मतलब होता है within. इंटर का मतलब होता है बिटवीन, इंट्रा का मतलब होता है विद इन. तो एक मसल के अंदर, विद इन द मसल. इंट्रा विद इन, मस्कुलर मसल विद इन द मसल. फिर लैसरेशन होती है डीप कट या टीयर इन द स्किन. लैसर का मतलब होता है टीयर करना, लैसरेशन. फिर आता है लीजन. लीजन होता है एक एबनॉर्मल एरिया ऑफ टिश्यू, जैसे कि कोई डिजीज़ हुई हो या इंजरी हुई हो या कोई भी ट्रॉमा हुआ हो. ठीक है. तो क्या है, लीजन है. ठीक है. ऐसे अगर कोई कैंसर का लीजन है या कोई ट्रॉमेटिक लीजन है. ठीक है. इस तरह आता है मलेज. मलेज कहते हैं किसी जनरल डिस्कम्फर्ट या इलनेस की फीलिंग को. ठीक है. तो क्या है, मलेज. देन यू हैव माइकोसिस. ओके. देन यू हैव माइकोसिस, which is a fungal infection. Basically mic is a fungus and osis is an abnormal condition, right? So mycosis. Then you have myelopathy. Myelopathy, myelo means spinal cord. Myelo means spinal cord and pathy means a disease. So a disease of the spinal cord. Then you have myopathy. Myo means muscle. myo means muscle. Pathy means disease, so muscle disease. ठीक है. Then you have myorexis. Rexis हमने पढ़ा था क्या है, rupture. And myo हमें क्या पता चला कि है muscle. तो rupture of the muscle is myorexis. इस तरह natal. Nat का मतलब होता है birth. So natal is related to birth. ठीक है. Neonatology is study. Ology का मतलब क्या होता है, study. Ologist का मतलब क्या होता है, जो study करता है. तो neonatology means study of newborns. Neo का मतलब होता है new. Nat is birth and ology study of newborns. ठीक है. Then you have neurorrhaphy. ठीक है. न्यूरोरैफी क्या है, suturing of a nerve. रैफी हमने क्या पढ़ा था कि suturing है, right? Suturing. और न्यूरो क्या है, a nerve. The suturing of a nerve is neurorrhaphy. Otorhinolaryngology is the study of otto, ear, rhino, nose, laryngo, throat. ठीक है. Study of ear, nose and throat, ENT. ठीक है. उसके बाद है पैल्पेशन. पैल्पेट का मतलब होता है टच करना. पैल्पेशन का मतलब टच करके एग्जामिन करना पेशेंट को. ठीक है. पैल्पिटेशन. पैल्पिटेशन का मतलब होता है
पैल्पेशन का मतलब टच करके एग्जामिन करना पेशेंट को, ठीक है। पैल्पिटेशन, पैल्पिटेशन का मतलब होता है, पैल्पिट का मतलब होता है थ्रॉब करना, पल्सेट करना, थ्रॉब करना, ठीक है, इस तरह थ्रॉब करना या पल्सेट करना, ठीक है। तो रैपिड या इरेगुलर हार्ट बीट को हम क्या कहते हैं, पैल्पिटेशन की पैल्पिटेशंस हो रही हैं पेशेंट को, ठीक है। फिर आता है पैथोलॉजी। पैथोलॉजी यू माइट नो, लॉजी क्या होता है, स्टडी ऑफ द थिंग, एंड पैथो का मतलब होता है डिजीज़, तो स्टडीइंग ऑफ द डिजीज़, स्टडी ऑफ द डिजीज़ को कहते हैं पैथोलॉजी। फिर आता है फेलेंजीज। फेलेंजीज हम कहते हैं बोन्स ऑफ द फिंगर्स एंड टोज को फेलेंजीज कहते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है पोलियोमाइलाइटिस। पोलियोमाइलाइटिस तो आपको पता होगा, पोलियो का क्या मतलब होता है, ग्रे, ठीक है। माइलो का क्या मतलब होता है, हमने पढ़ा था अभी, स्पाइनल कॉर्ड। तो जो स्पाइनल कॉर्ड का ग्रे मैटर होता है उसकी इन्फ्लेमेशन होती है पोलियोमाइलाइटिस, कॉमनली नोन एज पोलियो, ठीक है, पोलियो की डिजीज़। तो इन्फ्लेमेशन ऑफ द ग्रे मैटर ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड। फिर प्रोग्नोसिस, प्रो का मतलब बिफोर, ऑग्नोसिस का मतलब नॉलेज, ठीक है। तो प्रोग्नोसिस इज प्रिडिक्शन ऑफ द कोर्स ऑफ अ डिजीज़, कि कैसा रहेगा ये डिजीज़ में, क्या प्रोग्नोसिस है, क्या ये जिंदा बच जाएगा, क्या कितनी दिन में इसकी ट्रीटमेंट मुकम्मल हो जाएगी, या क्या ये ट्रीटेबल है कि नहीं है, तो प्रिडिक्शन ऑफ द कोर्स ऑफ अ डिजीज़, ठीक है। फिर आता है पायोडर्मा। डर्मा का मतलब कोई भी स्किन रिलेटेड, ठीक है। पायो का मतलब रिलेटेड टू पस, ठीक है। तो अ स्किन रिलेटेड डिसऑर्डर या इन्फेक्शन विच मीन्स पस इन द स्किन, ठीक है। तो एनी रिलेटेड कोई भी कंडीशन हो जिसमें पस फॉर्म हो रही है इन द स्किन, तो पायोडर्मा। देन यू हैव पायरोसिस। पायर का क्या मतलब होता है, बेसिकली पायर का मतलब होता है फायर, ठीक है, फायर या बर्निंग सेंसेशन। एंड ओसिस का मतलब होता है एबनॉर्मल कंडीशन, ठीक है। तो पायरोसिस क्या हुआ, अ हार्ट बर्न, एसिडिटी, हार्ट बर्न, ठीक है, पायरोसिस। देन यू हैव रिमिशन। रिमिशन तो इज इजी। रिमिशन का होता है कि डिक्रीज हो गए या डिसअपियर हो गए सिम्टम्स, ठीक है। री अगेन, ठीक है, और मिशन मतलब सेंडिंग, डिक्रीज और डिसअपियरेंस ऑफ सिम्टम्स, रिमिशन हो गई डिजीज़ की, ठीक है। फिर आता है साइंस। एक होता है साइंस, एक होता है सिम्टम्स। साइन क्या है, कोई ऑब्जेक्टिव एविडेंस है जो दूसरे देख सकते हैं, ऑब्जर्व कर सकते हैं, ठीक है। हम आप एक दूसरे में ऑब्जर्व कर सकते हैं, भाई बुखार हो रहा है या कुछ फीलिंग, कोई फीलिंग ऑब्जर्व कर सकते हैं, ठीक है, ऑब्जेक्टिव एविडेंस ऑफ डिजीज़। फिर एक होता है सिम्टम्स, ठीक है। तो सिम्टम्स क्या होते हैं, जो डॉक्टर आपको वो करता है कि भाई फॉर एग्जांपल आपको सिम्टम्स हैं, फीवर है, रेडनेस है, रैश है, डॉक्टर आपको सही से डायग्नोज करते हैं, दैट इज द डिफरेंस, साइंस एंड सिम्टम्स। देन यू हैव सुपिनेशन। सुपिनेशन क्या होता है, सुपाइन पोजीशन में आना, ठीक है। जैसे अगर हैंड या फुट है तो पाम ऑफ द हैंड अपवर्ड फेस करे, सोल ऑफ द फुट अपवर्ड फेस करे, सुपाइन। सुपाइन का मतलब होता है लाई बैक, ठीक है। तो सुपिनेशन ये हम पढ़ेंगे फर्दर। फिर आता है सप्यूरेशन। सप्यूरेशन, सपर का मतलब होता है प्रोड्यूस पस, ठीक है, पर का मतलब होता है प्रोड्यूसिंग पस। सप्यूरेशन इज द फॉर्मेशन ऑफ पस, ठीक है। सुप्रा कॉस्टल, यहाँ पे आपको सुप्रा बता रहे हैं लोग। सुप्रा का मतलब होता है अबव, ठीक है। और कॉस्टल का मतलब होता है रिब्स, कॉस्टल मसल्स पड़े होंगे ना, एक्स्ट्रा कॉस्टल मसल्स, इंट्रा कॉस्टल मसल्स। तो यहाँ पे क्या है, अबव द रिब्स, सुप्रा कॉस्टल, ठीक है। सिम्टम, सिम्टम क्या है, कोई भी सब्जेक्टिव साइंस ऑफ द डिजीज। आई थिंक मैंने कुछ वो कर दिया होगा साइंस एंड सिम्टम्स में, आई विल क्लियर इट आउट आफ्टरवर्ड्स, ठीक है। तो सिम्टम्स क्या है, कोई सब्जेक्टिव साइन ऑफ द डिजीज है फेल्ट बाय द पेशेंट, ठीक है। तो आई विल क्लियर आउट साइंस एंड सिम्टम्स, एक मिनट, आई वॉज राइट। साइंस ऑब्जेक्टिव एविडेंस होते हैं जो किसी और से मेजर होते हैं, कोई और ऑब्जर्व कर सकते हैं, जैसे स्किन रैश,
blood in the stool or abnormal heart rate. Okay, और symptoms होते हैं जो पेशेंट रिपोर्ट करता है, जैसे मुझे पेन हो रहा है, फटीग हो रहा है, डिजीनेस हो रहा है, क्या है, एक सिंड्रोम है, ठीक है। तो सिन का मतलब होता है साथ होना, टुगेदर, और ड्रोम का मतलब होता है रनिंग, कि मतलब साथ रन करे, साथ अकर हो रहे, ठीक है। लास्ट वन इज टॉन्सिलाइटिस, इन्फ्लेमेशन किसकी हुई है, टॉन्सिल्स की, ठीक है। यू हैव टॉन्सिलाइटिस। The next thing is trauma. Trauma है, you already might know about this. कोई भी physical injury या कोई emotional shock को trauma कहते हैं, ठीक है। Then you have triage. Triage क्या है, कोई भी क्या कहते हैं, treatment को prioritize करना according to its severity, ठीक है। यानी कि थ्री लेवल्स ऑफ अर्जेंसी बना दी हमने। ये वॉर में यूज़ होता था पहले, इसलिए इसका नाम ऐसे, ट्री का मतलब होता है थ्री। तो हमने अर्जेंसी के लेवल्स बना दिए, और जो सबसे ज़्यादा सिवियर है हम उसको पहले एड्रेस करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल एक आरटीए का पेशेंट आया और उसको कोई ब्रेन इंजरी भी हुई है, उसका मैंडिबल भी फ्रैक्चर हुआ है, और उसका कोई फीमर फ्रैक्चर हुआ है फॉर एग्जांपल, तो आप पहले क्या ट्रीट करेंगे, फिर आप उसकी ब्रेन इंजरी ट्रीट करेंगे, फिर आप उसकी फीमर फ्रैक्चर ट्रीट करेंगे, फिर आप जो है वो मैंडिबल को ट्रीट करेंगे, राइट। तो यू विल हैव an order of treating the patient, ठीक है। तो triage is prioritizing treatment based on severity. फिर आता है viral is just pertaining like related to a virus, कि viral fever है, ठीक है। तो I hope these explanations are enough. वैसे इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं थी इन डिटेल में स्टार्टिंग द चैप्टर विद दिस, बट सिंस इसमें मेंशन थी तो मैंने कर दिया। अच्छा, जस्ट फॉर यू टू अंडरस्टैंड, द थिंग इज़ कि जब भी कोई वर्ड आए तो ज़रूरी नहीं कि इन वर्ड्स में से ही कोई वर्ड आपके सामने आए तो आप बोलेंगे भाई हमें कैसे समझ आएगा कि कैसा वर्ड हम समझें। तो फर्स्ट थिंग इज़ लुक एट द रूट ऑफ द वर्ड। जैसे कोई एंटेराइटिस होगा, एंटर लिखा होगा तो वो इंटेस्टिन्स के बारे में, गैस्टर लिखा होगा स्टमक के बारे में, न्यूरो लिखा होगा ब्रेन या न्यूरॉन्स या नर्व्स के बारे में, ठीक है। इस तरह हम रूट ऑफ द वर्ड लिखेंगे। फिर हम कंबाइनिंग फॉर्म देखेंगे, फिर उसमें गैस्ट्रो है, न्यूरो है, एंटर है, माइलो है, मायो है, यूजुअली ओ होता है, ठीक है। फिर हम आते हैं उसके सफिक्स और प्रीफिक्स पे। सफिक्स और प्रीफिक्स उसका देखना है भाई क्या है। सफिक्स यूजुअली बताता है वो कौन सा प्रोसीजर हो रहा है, या कोई कंडीशन है, या डिसऑर्डर है, या डिसीज़ है। जैसे गैस्ट्राइटिस है, जैसे कार्डियोग्राफी है, कार्डियोग्राम है, ठीक है। तो कोई भी उसकी कंडीशन, डिसऑर्डर, डिजीज़, प्रोसीजर, इस तरह की चीज़ बताता है, ठीक है। प्रीफिक्स बताता है लोकेशन, टाइम, नंबर, स्टेटस, इस तरह की चीज़ें। हाइपर एल्जीजिया या प्री ऑप, पोस्ट ऑप, ठीक है। तो इस तरह की चीज़ें बताता है। ट्रियाज, ठीक है। तो इस तरह की चीज़ें बताता है सफिक्स और प्रीफिक्स। So this was the end of the first part of videos for this